Good morning, everyone. Today we are going to start worksheet 3 of class 6th, that is chapter number 2, factors and multiples. Till worksheet 2 we have completed the chapter. Now let us start worksheet number 3. In worksheet number 2 we have done some divisibility rule by of 2, 4, then 5, 10 and 8. Now there are some more divisibility rules, that is divisibility by 3. So I have written over here few definitions. Okay, a number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. For example, I have taken one number over here, है ना. So let us say this one example. Your number is 4392126. You have to check that either this number is divisible by 3 or not. You have to check. Now this number is very much long. बहुत लंबा है ना ये नंबर, तो इसको डिवाइड करने के लिए you need a lot of time. बट क्या हमारे पास कोई और भी मेथड है? येस, वी हैव मेथड. व्हाट इज़ दैट मेथड? इफ़ यू हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द sum of the digits. Sum of the digits mean 4 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 2 plus 6. तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे you will be getting 27. Now divide, जो भी आपके पास sum आएगा you have to divide that number by 3. 3 9s are 27, everybody knows, and the remainder is 0. That means this sum of the digit is completely divisible by 3. So what can we say? This total number is divisible by 3. This is the divisibility by 3 rule, है ना. So what you have to write at the end? Yes, 4392126 is divisible by 3. Clear? Let us take one more question. 439271, is it divisible by 3? So what you have to do, just find out the sum of the digits. 4 plus 3 plus 9 plus 2 plus 7 plus 1. Now find out the sum. 4 plus 3 is 7 plus 9 is 16, 18, 19 plus 7 is 26. So is 26 divisible by 3? Let us check. Divide करो इसको. 3 8s are 24. So यहाँ पर तो रिमाइंडर 2 आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल. सो नो, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. लाइक दिस यू हैव टू डू. This is the divisibility rule by 3. So what does the divisibility rule of 3? A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. One example, sum of all the digit is equal to 27. जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे it will be 3 9s are 27. So yes, this number is divisible by 3. Clear? Now second is divisibility by 9. So now what is the divisibility by 9? A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. अगेन जो डिविजिबिलिटी रूल आपका 3 के लिए था वही डिविजिबिलिटी रूल आपका 9 के लिए होगा. ओवर हियर आई हैव रिटन दिस नंबर. इज इट डिविजिबल बाय 9? लेट अस चेक. ठीक है, सो नंबर इज 8826921. Is it divisible by 9? So again what you have to do, find out sum of digits. So it will be 8 plus 8 plus 2 plus 6 plus 9 plus 2 plus 1. जब आप इनको ऐड करेंगे what you will be getting? 16 plus 2 is 18. 18 plus 6 24. 24 plus 24, 25, 26, 27, 27 and this will be 36. Okay, now divide this 36 by 9. So it will be 9 4s are 36. So yes, it is completely divisible. So what can we say? This number is divisible by 9. Yes, the number is divisible by 9. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व. और अगर कोई भी आपके पास यहाँ पे ऐसा नंबर आता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, आपका रिमाइंडर उसको 0 के इक्वल नहीं आता है, सो वी विल राइट आवर आंसर एज दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. ठीक है, सो
What is the divisibility by 9? See it again. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. This is the this question. Sum of all the digits is equal to 36. ठीक है. So जब आप 36 को 9 से डिवाइड करेंगे it will be divisible. So yes, this number is divisible by 9. ठीक है. Now next is divisibility by 11. Now what is the divisibility by 11? It's very interesting. If the difference, underline this word, if the difference between the sum of the digits at even places and sum of the digits at odd places is either 0, या तो वो 0 के इक्वल आए या मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नाउ इस वर्डिंग से इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. आई हैव टेकन वन एग्जांपल दैट चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो भी नंबर गिवन होगा, दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 11. ओके, आप इन नंबर को ऐसे लिख दो, थोड़ा सा ओपन खुला करके. ठीक है, 2 and 2. ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है, फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू मार्क ऑल द ऑड इवन प्लेसेस. स्टेटमेंट में क्या बात हो रही है, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस. ठीक है. सो जितना भी आपका 1 3, आपको पता है 1 3 5 7 9 11, ये सारे क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर्स होते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन आ गई ऑड. अब एक नंबर छोड़ के दिस विल बी ऑड, एक नंबर छोड़ के दिस विल बी ऑड, दिस नंबर लीव, दिस विल बी ऑड प्लेस. तो जितने भी नंबर्स के ऊपर मैंने सर्कल लगाया दे ऑल आर ऑड प्लेसेस. ठीक है. और जितने भी आपके बिना सर्कल के बच के दे विल बी इवन प्लेसेस. तो आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस के कितने हैं, 2 + 7 + 5 + 3. सो इट विल बी इक्वल टू 17. एक आंसर आ गया. नाउ सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, है ना. स्टेटमेंट में यही तो बातें हो रही हैं, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस. तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं जिनके ऊपर सर्कल मैंने नहीं लगाया. सो इट इज़ 2 + 6 + 8 + 1. अब इनका भी सम निकाल दो. सो इट विल बी 6 + 2 इज़ 8, 8 + 8 इज़ 16 + 1 इज़ 17. अब क्या बात हो रही है, मैंने आपको बोला था अंडरलाइन द वर्ड डिफरेंस. अब आपने इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकाल दिया. अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो डिफरेंस विल बी, लेट अस फाइंड आउट, 17 - 17 और हमारे पास क्या आया, 0. तो मैंने आपको क्या बोला, देखो स्टेटमेंट में, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, देन येस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11. अब यहाँ पर देखो, दोनों के ऑड एंड इवन प्लेसेस के डिजिट्स का हमने सम निकाला, उन दोनों सम को हमने माइनस किया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आया, 0. सो व्हाट कैन यू से, येस दिस नंबर 1 3 8 5 6 7 2 2 is divisible by 11. क्लियर. जब भी आपने ऑड और इवन नंबर्स को मार्क करना है, यू हैव टू मार्क इट फ्रॉम दिस साइड. जो फर्स्ट पोजीशन होती है आपकी, फर्स्ट पोजीशन मीन्स 1 नंबर, और 1 क्या होता है आपका, ऑड. अब एक ऑड नंबर आपको मिल गया, एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर दैट विल बी ऑड. दिस इज़ द थर्ड पोजीशन, इट इज़ ऑल्सो ऑड. नाउ एक नंबर छोड़ के दिस इज़ द फिफ्थ पोजीशन, ऐसे आएगा ना, 1 2 3 4 5, सो इट इज़ ऑड. नाउ एक नंबर छोड़ के 7, इट इज़ ऑल्सो ऑड. और जितने भी नंबर्स जिनके ऊपर सर्कल नहीं लगाया है, दे आर इवन. उनका सम निकालो एंड यू विल गेट द डिफरेंस. अब सपोज करो यहाँ पर तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 0. अब सपोज करो यहाँ पर हमारे पास अगर आता है नंबर 17 - 6, डिफरेंस अगर ऐसा कुछ आ जाए 11, या कुछ ऐसा आ जाए 22 33 44, मतलब मल्टीपल ऑफ 11, सो क्या होगा, अगेन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11.
ठीक है, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर डिफरेंस इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11. क्लियर? सो दैट वाज ऑल. Divisibility by 3, sum of all the digits. Divisibility by 9, sum of all the digits. दोनों सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिजिट्स का सम निकालना है. Divisibility by 11 थोड़ा सा डिफरेंट है बट इट्स ईजियर. फाइन. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.